Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is 19th of Feb. Today is Thursday. Today was Sensex expiry. But truly, today was a Trump's expiry. But to be honest, this entire year will be remembered as the Trump's year because markets ने Trump के कहने पर बहुत ज़्यादा move हुआ है इस साल. Because sometimes it's the tariff news, sometimes it's the trade deal, and this time Trump is having this biggest air deployment in the Middle East against Iran, and this has created some sort of a geopolitical instability. And fearing this, a lot of global markets have tumbled. And Nifty actually opened a gap up 25,900 के आसपास हम लोग gap up खुले. And throughout the day, the markets kept getting sold into, and it was one of the clear-cut downtrending days today. And Nifty fell almost 500 points, closing somewhere around 25,400 levels. 3 दिन पहले Nifty ने एक textbook kind of a bullish engulfing pattern दिया था, and today Nifty has formed a textbook kind of bearish engulfing candle. So today's Sensex expiry was quite volatile. In fact, आज का Sensex का जो straddle है 280 रुपीस पे खुला था. Almost 110 points of overnight decay we witnessed in the Sensex straddle, and with 280 points, Sensex has moved more than 1,500 points intraday today. In the first 2 hours itself, Sensex dropped by almost 800 points, and even at 12 o'clock, the straddle was trading at 340, much higher than the straddle open itself. So unless you could get the direction right, you would have gone through a lot of pain trading today's expiry. But again, some people might say that, oh, it was a clear-cut trending day, कोई pullback भी नहीं था, एक बहुत ही linear kind of a day था. But then, if you notice how the price action points were, you could notice that there were supports present at multiple levels, and every time the supports got breached, there was some sort of a panic and the straddle prices kept spiking. And I tried to kind of go against the direction of the trend because I was expecting the markets to be taking support at one or the other level, but पूरे दिन support कोई काम नहीं किया and every kind of support got breached. So I personally took a 0.1% hit, but considering the fact that I was bullish throughout the day, I think I did fairly well. So let's get to the terminal and let's see कल के निफ्टी के 2DT के लिए कैसे हम लोग प्लान बना सकते हैं, because आज निफ्टी का straddle भी almost 60 points spike हुआ है. The straddle opened at 230 and the straddle is closing at 295, and even we have seen a 10% spike in India VIX. So let's get to the terminal and let's see क्या प्लान हम बना सकते हैं. So डेली चार्ट पे जस्ट 2 दिन पहले हमको एक क्लियर कट एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न मिला था, बट आज हमको फिर से एक टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रहा है. सो यस, एज लॉन्ग एज द मार्केट्स आर रिएक्टिंग टू द ग्लोबल न्यूज एंड न्यूज फ्लो जब तक है तब तक यू कैन नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट द प्राइस एक्शन, एंड ऐसे वाला जो मूव्स है कंप्लीटली आपको दे कैन कैच यू ऑफ गार्ड. सो टुडेज मूव वाज solely because of the news, and some people say that, oh, it's because of the profit booking and all that. I don't think it's because of the profit booking, because generally profit booking ऐसे levels पे नहीं आते हैं, and especially whenever the markets are not at an all-time high, usually ऐसे kind of bearish candles print नहीं होते हैं unless this move is influenced by some sort of a news. So markets 25,500 लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट लेके मार्केट्स ने काफी स्ट्रांग एक बुलिश कैंडल बनाया था. नाउ ऑल दोस गेन्स हैव बीन नेगेटेड एंड द मार्केट्स आर क्लोजिंग एट 25,400 लेवल्स, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट वेयर दिस बुलिशनेस स्टार्टेड. तो अगर मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ता है स्पेशली ऑन अ फ्राइडे, सो एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ बेरिश क्लोजिंग एंड देन फर्दर डाउनसाइड टू सी लाइक 25,000 लेवल्स एंड 24,900 लेवल्स इन द फ्यूचर टाइम्स. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो यस, इट वाज अ क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग डे. कोई भी पुल बैक नहीं था, प्रैक्टिकली 0 पुल बैक्स थे. बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को पुल बैक्स देखने को मिला, बट अगेन पोस्ट 2 o'clock we again saw another down move here, and this down move was actually quite scary because यहाँ पे almost 4.5 घंटे मिला के मार्केट्स ने ऑलमोस्ट एक 200-250 पॉइंट का एक डाउन मूव दिखाया था. बट यहाँ पे within let's say like 1 hour the markets again fell almost 150 points. So एक काफी नेगेटिव क्लोज मार्केट्स में मिला हुआ है, एंड टुडे वाज सेंसेक्स एक्सपायरी. तो सेंसेक्स का जो स्ट्रैडल मैंने कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि लाइक अगर 300 के आसपास अगर स्ट्रैडल खुलता है तो लेट्स नॉट ओपन द स्ट्रैडल पोजीशंस और स्ट्रैंगल पोजीशंस. जनरली ऑप्शन सेलिंग के लिए वेट करना चाहिए. तो मैंने भी वेट किया एंड आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंस फ्रॉम दी सपोर्ट लेवल्स बिकॉज सेंसेक्स के पास मल्टीपल सपोर्ट्स थे. इफ यू नोटिस मार्केट्स ने यहाँ पे गैप अप खुला
एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट्स के पास सपोर्ट था, ये लेवल एक सपोर्ट था, ये लेवल एक सपोर्ट था, ये लेवल एक सपोर्ट था, एंड इवन ये लेवल एक सपोर्ट था. तो मैंने ऑफ कोर्स आई वाज ट्राइंग टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, बट एट द सेम time I was holding on to my puts till these particular levels were breached, and every time those levels breached I had to book some losses in the puts and I had to roll down the calls. So I never got a chance to be in the direction of the trend, but rather I was expecting the markets to hold the supports, because usually मैं थोड़ा contrarian होता हूँ. When everyone is fearful कि ओ ईरान का वॉर चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, then most of the markets would be positioning in the downside. तो I tried to call the bluff thinking that ओ यहाँ पे market एक suddenly एक sharp bullish momentum दिखने को मिलेगा, because it will trap all the shorters and suddenly एक short covering rally आ सकती है. But again ब्लफ का डबल ब्लफ हो गया आज मेरे साथ. बट अगेन कंसिडरिंग लाइक हाउ आई वॉज बुलिश, आई क्लोज्ड एट ओनली 0.1% नेगेटिव, विच इज प्रैक्टिकली नथिंग. एंड yes, I could have done well if I was positioning in the direction of the trend, but markets में एक काफी अच्छा एक bullish sentiment था. तो I am of the opinion कि like generally मेरा जो intraday का भी positions रहता है, तो they'll be in the direction of the larger time frame का trend. तो यहाँ पे larger time frame का trend जो था वो bullish था, तो I was expecting these supports to hold, but unfortunately those supports didn't hold and I had to take the losses in my puts. But again, as I said, 0.1% loss है, which is practically nothing. But people who are trading like TBS, that is time based straddles जो चलाते हैं, they would have made a crazy amount of money today, because उनका कैसा रहता है कि मॉर्निंग 9:20 9:30 के आसपास ही कॉल्स एंड पुट्स दोनों को शॉर्ट कर देते हैं एंड उसका एक 30% या 35% स्टॉप लॉस रख देते हैं. एंड जनरली आज पुट्स का स्टॉप लॉस 30-35% पे कट गया होगा, एंड दिस कॉल वुड हैव गिवन द एंटायर amount of money, because the markets didn't even give any sort of a pullback and it was a clear cut one way kind of a move. And even by the end of the day I was expecting this 83,000 levels to actually hold, because यहाँ पे markets कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक consolidation बना रहा था. But then again 83,000 levels and even 80-800 levels also got taken out after 230, and वहाँ पे भी मेरा थोड़ा bias था. आज continuously मेरा bias गलत हुआ. So it is a part of the business, and as a trader I can't always have the bias is right. हमेशा मतलब मेरा व्यू हमेशा सही नहीं रहता है, एंड दैट इज वाई लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लूइडिक इन द मार्केट. मान लो कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू एक्चुअली होल्ड दिस लेवल. अगर मैं एडमेंट होता, इवन मार्केट्स यहाँ पे आने के बाद भी मतलब मैं एडमेंट होता कि वो मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होने वाला है, देन आई वुड हैव टेकन मोर देन 2 or 3% लॉस. बट देन एज एंड व्हेन द मार्केट स्टार्टेड टेकिंग आउट पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल्स, देन मैं थोड़ा मेरा बायस को चेंज करता रहा. बट अगेन एवरी टाइम the market used to come near the support levels, I used to take a chance, because यहाँ पे risk reward मेरे लिए काफी अच्छा बन जाता है, because support के आसपास अगर मैं put short करता हूँ तो मेरा risk reward काफी अच्छा बन जाता है, because मेरा 1 का risk के लिए मेरे पास almost 4 या 5 का reward बन जाता है. So I kept doing that, and yes, one of those days which didn't work, and I'm completely okay with it. Tomorrow is Nifty's 2DT. अगर straddle की बात करें, you can notice that today the entire day the straddle actually gained. तो overnight 250 के आसपास straddle close हुआ था, and today we opened at 230, almost 20 points का एक overnight crush देखने को मिला. and जैसे जैसे markets ने सारे supports तोड़ना शुरू किया, the straddle kept gaining, and at one point it was trading at 305, and towards the end of the day it is closing at 295, which is slightly better than the couple of weeks. But again, considering the fact that the markets will be moving violently in both the directions, and the markets will be swinging not based on price action but basically based on the news flow, even this 300, I would say it wouldn't justify us taking delta neutral trades, or even basically short wall करने के लिए even this 300 rupees is not justified in my opinion. So Friday के दिन हम लोगों को price action based अगर trades लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? तो of course we should be in the direction of the trend. तो अगर market अगर कल 9:30 के पहले इस लो को अगर तोड़ता है, बेसिकली मार्केट को फ्लैट ओपन करना पड़ेगा एंड देन प्राइस एक्शन बना के इस लो को तोड़ना पड़ेगा. देन आईड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड ट्रेल करते जाऊंगा मैं. एंड जनरली ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करेंगे, एंड अगर मार्केट वापस रेंज के अंदर आ जाता है तो देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैडल. बिकॉज मान लो कि अगर मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया कल एंड यहाँ पे आ गया, एंड देन आपके पास कॉल्स है, तो यू विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट
मार्केट्स टू कम बैक इनटू द रेंज, बिकॉज यहाँ पे आप इसी लेवल पे आपको कॉल शार्ट करना पड़ेगा एंड यू शुड जस्ट ट्रेल द कॉल्स. बट अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके सब लोगों को ट्रैप करके मार्केट्स में ऊपर जाना शुरू कर देगा, देन प्रोबेबली वी हैव टू बी अगेन टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल बिट. बट अगर मान लो कि मार्केट्स में अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो देन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ ओवरनाइट स्पाइक इन द स्ट्रैडल एज वेल. हो सकता है कि फ्राइडे के दिन हमको मिल जाएगा 320-330 रुपीस भी स्ट्रैडल देखने को मिल जाएगा. सो अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स से 25-200 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, देन इफ स्ट्रैडल ओपन्स एट 330 प्लस, अगर 330 प्लस अगर स्ट्रैडल खुलता है एंड वी ओपन एट 25-200 लेवल्स, देन मैं एक 20% साइज के साथ मैं स्ट्रैडल्स ट्रेड करना पसंद करूंगा और इवन सीटीएम स्ट्रैंगल्स भी ट्रेड करना पसंद करूंगा. मोस्टली 25-400 का कॉल्स एंड 25,000 का पुट्स, जो ये 400 पॉइंट्स का जो स्ट्रैंगल है इसको मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा जस्ट टू गेट सम इनिशियल वॉल क्रश. बिकॉज कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली until unless we see another 200 or 300 point of a down move, I am expecting straddles to close somewhere around 270. तो अगर 330 पे अगर straddle open होता है तो 60 points आपके पास potential DK खाने को रहता है, but at the same time you should be managing the positions dynamically. तो थोड़ा बहुत delta hedge definitely करना पड़ेगा. But again initial crush के लिए आपको target करना है, तो then if market opens a big gap up and the straddle opens above 330, yes, some amount of delta neutral trading is अलाउड. ठीक है. अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से 25,500 के ऊपर खुलता है, तो देन आई वुड नॉट एंटरटेन द मार्केट्स टुमारो, बिकॉज मार्केट्स के पास बहुत ज्यादा खाली प्लेस पड़ा हुआ है. तो मार्केट्स कहीं पे भी मूव हो सकता है कि मार्केट्स यहाँ पे आके देन जस्ट लाइक टुडे लाइक हाउ गैप अप होने के बाद भी कोई भी सपोर्ट्स को मार्केट्स ने रिस्पेक्ट नहीं किया, एकदम सपोर्ट को तोड़ दिया. तो कल भी ये होने का चांसेस रहता है कि इवन इफ द मार्केट ओपन्स एट 25,550 लेवल्स, मार्केट्स माइट ट्रैवल 150 पॉइंट्स एंड स्टिल ब्रेक डाउन एंड गो अहेड हियर. बट अगर 150 पॉइंट्स अगर मार्केट ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मीन रिवर्सन ट्रेड प्लान में कर सकता हूँ. इफ द मार्केट ट्रैवल्स more than 150 points, let's say 25,550 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है एंड देन इफ इट हिट्स टुडेज लो, देन यहां पे मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न वेट करूंगा. पैटर्न को वेट करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न होने दो या एक ग्रीन एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न होने दो. ये दोनों पैटर्न्स को वेट करके मैं यहां पे थोड़ा मीन रिवर्सन ट्रेड ले सकता हूं. बट अगेन थोड़ा रिस्क आपका सिर्फ 0.2-0.3% से ज्यादा आप रिस्क मत लो, बिकॉज देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड मार्केट्स माइट कंटिन्यू टू हेड लोअर. यहां पे इट इज प्योरली रिस्क रिवॉर्ड वाला bet, but still I would say that because the markets are moving based on the news, यहाँ पे थोड़ा इस ट्रेड का विन होने का चांसेस जो है वो थोड़ा कम होता है. अगर आपको ट्रेड लेना ही है then you can trade. ऑलराइट. तो अगर बड़ा एक गैप अप खुल जाता है, लाइक लेट्स से लाइक मार्केट्स में सडनली ओवरनाइट कुछ न्यूज आ जाता है कि लाइक वो जो वॉर जो होने वाला है वो शायद कुछ नहीं होने वाला, या कुछ सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के कारण अगर मार्केट्स में अगर एक बड़ा गैप अप खुल जाता है, देन skip the markets tomorrow, because एक बड़ा गैप अप खुल जाता है स्पेशली आफ्टर अ क्लीन डाउन ट्रेंडिंग डे. तो देन मार्केट्स ने एक फिर से एक फेयर वैल्यू ढूंढने का प्रयास करने वाला है. तो मार्केट्स को अभी पता नहीं कि कहां जाने वाला है. हो सकता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले, या यहाँ पे मार्केट्स ने बड़ा गैप अप को लाइक पीपल माइट बी यूजिंग, इंस्टीट्यूशंस माइट बी यूजिंग दिस बिग गैप अप एज सम अपॉर्चुनिटी टू अगेन शॉर्ट द मार्केट्स. तो दोनों तरफ मार्केट जा सकता है. तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी पोजिशंस एट दिस लेवल. एंड ये जो प्राइस एक्शन पॉइंट्स है वो थोड़ा अभी ज्यादातर काम आने वाला नहीं है. तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट्स के पास यही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स है. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट्स ने यहाँ पे आया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मार्केट्स में एक छोटा सा रेंज फॉर्म हो गया, तो दैट इज अगेन विशफुल थिंकिंग हो जाता है. तो मार्केट्स पहले इन चीजों को, इन लेवल्स को एक बार या दो बार रेस्पेक्ट करने दो, देन हमारे लिए वो जो लेवल्स है वो की लेवल्स बन जाएगा. सो कल के लिए थोड़ा मतलब वेट एंड वॉच रहने वाला है. अगर आपको ट्रेड करना ही है, जैसे मैंने कहा, वो 2 या 3 ट्रेड्स, 3 सिनेरियोस हम लोग प्लान कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी ट्राइंग टू सिट ऑन द साइडलाइंस एंड वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ क्लियर कट इंडिकेशन. ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैड अ डिसेंट एक्सपायरी. आपका एक्सपायरी कैसा रहा? लेट मी नो इन द कमेंट्स. पर्सनली आई टुक अ 0.1% हिट टुडे. लेट मी नो आपका एक्सपायरी कैसा रहा. आई विल अगेन सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.